Hello friends, welcome back. I Vaishnavi Patil, and in this session we are going to complete the On Wing of Courage, the chapter. And prior of this we have done with two chapters, Connecting the Dot, and second is The Thief Story. We have already done with the two chapters, and in this lecture we are going to complete the chapter on Wings of Courage. Okay? So without wasting more time, let's begin. Okay. So how I'll be teaching? I'll be teaching in the way like I'll be reading first and then I'll explain so that it would be easy. If you are not having textbook in your hand, no worries, just see the videos and that's it. Okay, most probably half an hour or 40 minutes it will take to complete one chapter. Okay, so your first chapter is the third chapter on Wings of Courage. Air Force Marshal Arjun Singh. Force Marshal Arjun Singh, an icon of India's military history, will always be remembered as military history will always be remembered as a war hero who had successfully led a young IF during the 1965 Indo-Pak War. Now, who is Arjun Singh? He is a force marshal, see air marshal. इनका जो rank है वो कौन सा है? Air marshal. This air marshal rank is something which is the top rank in the एयर फोर्स. ओके, इंडियन एयर फोर्स. ठीक है, वैसे हम अगर देखने जाए तो आर्मी में कौन सी हाईएस्ट रैंक होती है? इन आर्मी हाईएस्ट रैंक कौन सी होती है? जनरल. ठीक है, फिर आप अगर एयर में देखो तो एयर मार्शल रहती है. ओके, क्लियर. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेड ऑफ ऑल द थ्री सर्विसेज, दैट इज थ्री आर्म फोर्सेस, तो उनको बोलते हैं CDS, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. कैसे बोलते हैं? एयर नेवी और एयर नेवी और आर्मी, इन तीनों की चीफ को हम कहेंगे CDS, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. क्लियर. तो डोंट फॉरगेट अबाउट दिस इज एन एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन गिविंग आई एम गिविंग टू यू. ओके, सो नोट इट डाउन इफ यू रिक्वायर इन फ्यूचर. क्लियर. तो हमारे फर्स्ट CDS कौन थे? वॉज बिपिन रावत. क्लियर. फर्स्ट कौन थे? बिपिन रावत. ठीक है. नेक्स्ट, द ओनली ऑफिसर टू अटेन द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल. ठीक है, यही अकेले थे जिन्होंने ये जो एयर मार्शल की जो पोस्ट है, दैट इज नॉट दैट इजी. ओके, यहाँ पर बहुत बोलते ना, you require rigorous hard work, rigorous training, then only you go to such a highest post. Clear. So the air force equivalent to the army's 5-star field marshal. मैंने कहा था ना, army's 5 field marshal. हमारे first field marshal कौन थे by the way? Was our first field marshal Sam Manekshaw. ठीक है, ये हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल थे. क्लियर. जैसे हमारे एयर में एयर मार्शल होता है, इन द सेम वे फील्ड मार्शल इज समथिंग विच इज द हाईएस्ट रैंक इन आर्मी. ओके, तो ये लिख के रख देना इफ यू आर डैम इंटरेस्टेड इन आर्म फोर्सेस. ठीक है. सिंह वॉज अ फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट हु हैड फ्लोन मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट. ये ऐसे बंदे थे जिन्होंने, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैव flew the 60 aeroplanes. Can you imagine in one career, in his career, most probably 60 different pilots, 60 different airplanes he have flew. Okay, ये अकेले वैसे थे जिन्होंने fearlessly इतने सारे complete कर दिए. Clear. वो अकेले थे जिन्होंने flown किए. Any doubt? Sure. Hope so first para is clear. Next, he played a major role in transforming the Indian Air Force. IAF is nothing else but Indian Air Force. ठीक है, IAF क्या है? It is nothing else but Indian Air Force. ठीक है, इसे लिखते हैं IAF. Clear? Good. Next, he plays a major role in transforming the Indian Air Force into one of the most potent air forces globally and the 4th biggest in the world. His contribution to the Indian Air Force is monumental. To the list, the Indian Air Force grew with him. ही वॉज द एपिटोम. एपिटोम मतलब क्या? एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था उन्हें.
ठीक है. ही वॉज द एपिटम ऑफ मिलिट्री लीडरशिप इन क्लासिकल सेंस एंड इट इज देयर फॉर not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal, former Vice Chief of Indian Air Force, that is Kapil Kak said. ठीक है. तो ये कहते हैं कि ये अकेला ऐसा आदमी था कि ये अकेले ऐसे थे जिन्होंने इतने हाईएस्ट रैंक तक गए. फिर उसके बाद उससे पहले ही वॉज वेरी लॉयल टू हिज वर्क, राइट. ही गेव इज 100% टू इंडियन एयरफोर्स. इनके साथ जैसे जैसे ये बढ़ रहे थे उनके साथ ही वॉज टेकिंग ऑल द इंडियन एयरफोर्स टू दी जेनिथ. ठीक है. ये अपने जेनिथ तक लेके जा रहे थे खुद को और एट द सेम टाइम किसको लेके जा रहे थे, इंडियन एयरफोर्स को भी. ठीक है. सो एक बोलते ना एक बंदा काम करता है इंडियन एयरफोर्स में लेकिन ये काम तो कर ही रहता है बट एट द सेम टाइम वॉज टेकिंग टूवर्ड्स दी जेनिथ. ओके क्लियर. नेक्स्ट, सिंह वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे. तो इनको एयर मार्शल रैंक कब मिली थी, 2002 में मिली थी. कब मिली थी, 2002 में रिपब्लिक डे के दिन मिली थी. ठीक है. सी ये जो ओहदा है, ये जो रैंक है, दैट इज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेन दैट. ओके. आप लाइफ में कितना भी पैसा कमा लो लेकिन यू आर नॉट इफ यू नॉट गेनिंग इट बाय योर ओन, वो पैसा कोई काम का ही नहीं है. बिकॉज दिस रैंक इज एक्चुअली द हाइएस्ट रैंक, क्लियर, इन आर्म फोर्सेस स्पेशली इन एयर. ओके. सो इन्हें ये रैंक कब मिली थी, ये रिपब्लिक डे में. का नाम क्या था, अजीत सिंह. ठीक है. तो इन्हें ये रैंक कब मिली थी, 2002 में मिली थी. ओके. इन 2002 रिपब्लिक डे के टाइम मिली थी. क्लियर. नेक्स्ट, सैम हरमोस जी, फ्राम जी, जमशेद जी, मानिक शाह. आई एम टॉकिंग अबाउट सैम मानिक शाह. ये जो मूवी निकली थी ना, वो मूवी का तो नहीं पता नाम क्या है उस मूवी का, बट ये जो मूवी निकली थी सैम बहादुर करके, उनका नाम पूछा था तो बोलते सैम बहादुर करके. तो ये मूवी जो भी की कौशल की थी, इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेबल टू द लाइफ ऑफ सैम मानिक शाह, हु इज़ द फर्स्ट फील्ड मार्शल. क्लियर. हु इज़ द फर्स्ट फील्ड मार्शल. क्लियर. सो नोन एज द मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, सिंह वॉज, ओके यहाँ पर है, सैम हॉर्मुज जी, फ्राम जी, जमशेद जी, मानिक शाह एंड KM कारियप्पा वर द ओनली 2 आर्मी जनरल ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल. ठीक है. ये दो ऐसे ही आदमी थे. पहले तो हमारे सैम मानिक शाह थे फर्स्ट फील्ड मार्शल. ठीक है. ही वॉज फर्स्ट. और KM करियप्पा जो है हमारे वो सेकेंड में. ठीक है. पहले फील्ड मार्शल कौन है, सैम मानिक शाह. ठीक है. उनका नाम ऐसा है, सैम हरमुज जी, फ्राम जी, जमशेद जी, मानिक शाह. इट इज़ हिज फुल नेम. क्लियर. और जब हम KM करियप्पा की बात कर रहे हैं तो KM करियप्पा कौन थे, सेकेंड फील्ड मार्शल थे. Okay. Next, known as a man of few words, Singh was not only a fearless pilot but also had profound knowledge about air power and applied it in a wide spectrum of areas. Singh had assiduously led the Indian Air Force during the 1965 war and denied success to Pakistan Air Force, though it was better equipped with American support. His most outstanding contribution was during दैट वॉर, सेड कक. ठीक है. उनका सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन कब था, जब इंडिया पाक का वॉर चल रहा था एट दैट टाइम. ठीक है. उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया था, इसलिए उस टाइम के जो मार्शल थे, वो जो काक थे, वो उन्होंने अप्रिशिएट किया था किसको, अरिजीत सिंह को. क्लियर. कमांडिंग हिज रोल इन द वॉर, YB चौहान द डिफेंस मिनिस्टर हैड रिटन, एयर मार्शल अर्जुन सिंह, अरिजीत नहीं अर्जुन है. ठीक है. अर्जुन सिंह is a jewel of a person, quite efficient and firm, unexcitably but a very able leader. ठीक है. वहाँ के जब उस टाइम के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने स्पेसिफिकली अर्जुन सिंह को अप्रिशिएट किया था कि ये ऐसा बंदा है who is a very perfect leader for Indian Air Force. Clear. So this was the thing said by whom, the defense minister at that time. Okay. Next, in 1944, the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support mission during the crucial Imphal. अभी इम्फाल कहाँ पर है भाई, इम्फाल ये नॉर्थ ईस्ट में. ठीक है. ये हमारी जो 7 सिस्टर है ना, उसमें किसी की तो कैपिटल ही है. ठीक है. चेक वंस मणिपुर या फिर मिजोरम या फिर नागालैंड की होगी. ठीक है. अमंग दिस 3
इतना तो गारंटी है. Clear? So, in 1944, the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support mission during the crucial Imphal campaign, and later assisted the advance of the Allied forces to Yangon, formerly Rangoon. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया था 1944 में एक स्क्वाड्रन लीड कर रहे थे. कौन? मार्शल. ठीक है. किसके अगेंस्ट कर रहे थे? ये जापानीज के अगेंस्ट लीड कर रहे थे. क्लियर? During the Arakan campaign, flying close air support mission during the crucial Imphal campaign, and later assisted the advance of the Allied forces. फिर ये यंगून में Allied forces के और चले गए, बस गए. Okay? In recognition of his feat, he was awarded the Distinguished Flying Cross. Now this is again important. ठीक है. उन्हें क्या मिला था? Distinguished Flying Cross, that is DFC. ये बहुत important है. ठीक है. ये अलग से बोलते हैं ना, करिकुलम में आपको अवार्ड दिया जाता है वहाँ पर एयरफोर्स में. ऑन द स्पॉट बाय द सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है. ये कमांड जो होते हैं एयरफोर्स के, कितने कमांड है ये बताइए. आर्मी के मैं बता दूँ, आर्मी के टोटल 7. एयरफोर्स के बताइए कितने होते हैं कमांड. ठीक है. टेल मी हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन एयरफोर्स. ओके. नेक्स्ट. सिंह वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 15. अब कहा कब जन्म लिया था? अच्छा, और भी बाकी है. द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट. ये पहले इंडियन पायलट थे जिन्होंने ये अवार्ड जीता था. इससे पहले तो मैंने कल एक वर्ड पढ़ाया था, पायनियर. ही वॉज द पायनियर, राइट. ही सेट अप, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन. ठीक है. सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयरफोर्स क्रैनविल in 1938 when he was 19 year old. He retired from service in 1969. तो सोचो कितने साल की सर्विस थी. इन्होंने 19 ईयर के थे तभी ये सिलेक्ट हुए थे. किस लिए हुए थे ये सिलेक्ट? ही वॉज सिलेक्टेड फॉर व्हाट? एम्पायर पायलट ट्रेनिंग. ठीक है. सोचो हमें इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ये सिलेक्ट हो गए थे. मतलब दो ब्रिटिश वॉज देयर एट दैट टाइम. दिस ये जो सर थे ये पहले ही सिलेक्ट हो गए थे. इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन. टुडे वी शुड सैल्यूट हिम बिकॉज इनकी वजह से हमारी इंडियन एयरफोर्स इतने आगे जेनिथ पर पहुंची है, राइट. नेक्स्ट. सिंह वॉज बॉर्न ऑन 15 अप्रैल. कब बॉर्न हुए थे? 15 अप्रैल 1919. ठीक है. इन लियालपुर, नाउ फैजलाबाद, पाकिस्तान. एंड completed his education at Montgomery. ठीक है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ सनीवाल, पाकिस्तान में ही है. मॉन्टगोमेरी में इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया. किन्होंने? अर्जुन सिंह ने. ठीक है. They have completed the education in Montgomery. His first assignment on being commissioned was to fly Westland. कहाँ पर फ्लाई कर रहे थे ये? वेस्टलैंड वापीती. बाई प्लेन्स. ठीक है. बाई प्लेन्स क्या होता है? ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हैविंग 2 पेयर ऑफ विंग्स. ठीक है. ये बहुत पुरानी एयरक्राफ्ट थी ऐसे जिसको ना 2 प्लेन थे, मतलब 2 प्लेट्स थी ऐसे. क्लियर. तो ये बहुत पुरानी तरह की एयरक्राफ्ट थी. ठीक है. उससे ये पहले फ्लाई कर रहे थे. क्लियर. नेक्स्ट. आफ्टर अ ब्रीफ stint with the newly formed number 2 RIAF squadron where the Marshal flew against the tribal forces, he later moved back to number 1 squadron as a flying officer to fly the Hawker Hurricanes. He was promoted to the rank of squadron leader in 1944. ठीक है. in 1944 में इन्होंने जो यूरिकेन था वहाँ पर वो he visited over there. ठीक है. और ये number 1 squadron as a flying officer थे वहाँ पर. ठीक है. as a flying officer. this is again a rank. okay. rank in Air Force. rank in Air Force. okay. for his role in successfully leading the squadron in combat, he was awarded the Distinguished Flying Cross, again DFC, in 1944. ठीक है. पहली बार इन्हें कब मिला था ये? tell me first time when he got this thing. ये पहली बार इन्हें कब मिला था? देखा, फ्लाइंग ऑफिसर का मिला था. अगेन DFC in 1944. ठीक है. 1944 ऑन August 15. कब क्या रहता हमारा इंडिपेंडेंस डे? 1940. he achieved the unique honor of leading fly past of over 100 Indian Air Force aircraft over the Red Fort in Delhi. पता है ना, राजपथ हमारा अभी उसका नाम चेंज होके कर्तव्य पद हो गया.
ठीक है. फर्स्ट इट वॉज नोन एज वॉट, राजपथ. अब आज जाके उसका नाम चेंज करके क्या दिया है, कर्तव्य पथ. ओके. After his promotion to the rank of wing commander, he attended the Royal Staff College at the UK. Immediately after Indian independence, he commanded Ambala in the rank of group captain. ठीक है. फिर वो अम्बाला शिफ्ट हो गए. क्या नाम था उसका, मतलब वो जो रैंक उन्हें मिली थी वो कौन सी थी, ग्रुप कैप्टन. इन 1949 he was promoted to the rank of air commander and took over as air officer commanding AOC. ठीक है. Of an operational command which later came to be known as Western Air Command. ठीक है. ये जो कमांड बात कर रहे हैं ना, देर आर कमांड्स लाइक ट्रेनिंग कमांड, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड. सदर्न कमांड आर्मी की कहाँ पर प्रेजेंट है, यही पुणे में प्रेजेंट है. ओके. सो दिस आर द कमांड्स. ठीक है. ये हमारे आर्म फोर्सेस की कमांड्स रहती है. ये मिलिट्री एरिया रहता है, यहाँ पर यू कैन गो विदाउट एनी पास. ठीक है. ये बहुत स्ट्रिक्ट एरिया रहता है, वहाँ पर सिर्फ आर्म फोर्सेस वाले बंदे ही जा सकते हैं. ओके. सिंह had the distinction of having the longest tenure as AOC. Now what do you mean by AOC? Air Officer Commanding. ठीक है. Singh has the distinction of having the longest tenure as AOC of an operational base, initially from 1949 to 52 and then again from 1957 to 61. आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल. ठीक है. आफ्टर इनका जो प्रमोशन हुआ एयर वाइस मार्शल में, ही वॉज अपॉइंटेड एज द AOC इन सी ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड. ठीक है. फिर ये कहाँ पर AOC बन गए थे, ऑपरेशनल कमांड में. ठीक है. तो सी व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर की इन्हें कभी ओहदा मिला, व्हेन ही शिफ्टेड टू दिस प्लेस टू दैट प्लेस, पूरा कहानी यही है. ठीक है. बिकॉज वी आर स्पेसिफिकली लर्निंग अबाउट एन ऑटोबायोग्राफी एंड अर्जन सिंह. ठीक है. ये खुद मतलब क्या, कैसे, कितने टाइम में कैसे मूव हुए, क्या हुआ, व्हाट आर सर्कमस्टेंसेस ही फेसेस, दैट ऑल थिंग्स वी आर डूइंग. ठीक है. Towards the end of 1962 war, he was appointed as the deputy chief of the air staff. ठीक है. This is again very important place, post, deputy chief of the air staff, and he became the vice chief of the air staff in 1963. ठीक है. 1969 तक का टेन्योर था ना इनका, तो 1963 में क्या बन गई है, वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ. क्लियर. ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा हेल्ड बिटवीन इंडियन एयरफोर्स. ठीक है. शिक्षा हेल्ड बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स. ये बायलैटरल एक्सरसाइज रहती है. अच्छा, इनकी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, क्योंकि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स भी. नाउ व्हाट आर दिस बायलैटरल, ट्राइलेटरल. Bilateral means two countries are performing one exercise together. ठीक है. Trilateral means three countries are coming together to perform an exercise. ठीक है. So ये होती है bilateral and trilateral. ओके. ये हर साल होती है, कभी 2 साल में एक बार होगी, या फिर 2 साल में 4 बार होगी. मीन्स एवरी ईयर इट टेक 2 times, इट टेक्स प्लेस 2 times. फिर या फिर 3 साल के एक बार, 3 साल के बाद, या फिर हर साल एक बार हो रही है. ठीक है. ये बायलैटरल और ट्राइलेटरल ये हर साल होती है. ओके. See this great personality, he is our great personality. ओके. ये हमारी ग्रेट पर्सनालिटी है. इनका नाम क्या है, ओके, इज अर्जुन सिंह. एनी डाउट? नो? श्योर? थोड़ा बड़ा कर दूं? ओके. क्लियर. अब पढ़ते ये पेज. ऑन अगस्त 1964. ठीक है. ऑन अगस्त 1964, in the rank of air marshal, the marshal of the air force Arjun Singh took over reign of Indian Air Force at a time when it was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenges. Okay. Singh was the first air chief to keep his flying currency till his CAS rank, having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War II era biplanes to the more contemporary Nats and Vampires. He has also flown in transport aircraft like the Super Constellation. ठीक है. In 1965 when Pakistan launched its operation Grand Slam, जब पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन जब लॉन्च किया था, क्या नाम था उसका, ग्रैंड स्लैम, with an arm thrust targeted at the vital town of अखनूर. ठीक है. जब इन्होंने टारगेट किया था, कौन से प्लेस पे किया था, ये अखनूर पे किया था.
Singh led Indian Air Force through the war with courage, determination, and professional skills. He inspired Indian Air Force to victory despite the constraint imposed to the full-scale use of Indian Air Force combat force. तो ये जब अटैक हुआ था एट दैट टाइम, ये इंस्टेड ऑफ गेटिंग डी इमोरल होने से अच्छा इन्होंने अपने फोर्स को, इंडियन एयर फोर्स को powerfully explain that we have to get it them by hook or by crook. Okay, so they went it, they made it. तो इसलिए ये पता चलता है कि अर्जन सिंह at that moment was he come up with very different techniques. आगे भी इन्होंने अपनी खुद की टेक्निक्स लाई है हेलीकॉप्टर्स एंड एरोप्लेन्स में. ओके, सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज एस्ट्यूट. ठीक है, उन्हें क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था. ठीक है, क्या मिला था? पद्म विभूषण for his astute leadership of the Air Force during the war. Subsequently, in recognition of his Air Force contribution during the war, the rank of CAS was upgraded and Arjun Singh became the first Air Chief Marshal. ठीक है, तो इन्हें कौन सी रैंक मिली थी? फर्स्ट एयर चीफ मार्शल की रैंक मिली थी. ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी सर्विस, एट द सेम टाइम आप कितना लॉरियल जीते हो यहाँ पर. ठीक है, he remained a flyer to the end of his tenure in Indian Air Force. ठीक है, with visiting forward bases and units and flying with the squadron. He retired in August 1969. Thereupon accepting the ambassadorship of Switzerland, he was Lieutenant Governor of Delhi from December 8, 1989 to 1990. बोलते ना, after achieving so many achievements, India, the Bharat, will accept you everywhere if you are interested, right? In the same way he was the ambassador in Delhi, he was the lieutenant governor over there. ठीक है, तो इनकी जो रैंक थी, the work he did, the field work that was actually amazing. ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें बाद में ये औहदा मिला. Clear? Having been a source of inspiration to all the personnel of armed forces through the year, the government conferred the rank of Marshal of the Air Force upon Arjun Singh. ठीक है, तो गवर्नमेंट में बाद में कौन सी रैंक दे दी? एयर मार्शल की रैंक दे दी. किसको दे दी इन्होंने ये रैंक? इन्होंने ये रैंक दी अर्जन सिंह को. क्लियर? व्हेन इन 2002 रिपब्लिक डे के दिन में. ठीक है, दिस रैंक इज नॉट अ जोक फ्रेंड्स, इट इज एक्चुअली अ जेनिथ रैंक इन द एयर फोर्स. क्लियर? 5-star rank officer with Indian Air Force. Clear? Now you have to complete this workshop. Workshop में क्या दिया है? Read the text and filling the flow chart of the promotions received by Arjun Singh. Members of number 1 RIAF. अब members कौन है आपको लिखना है. फिर उसके बाद क्या? मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, वहाँ से लेके पूरे आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है. ठीक है, कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6 5 ही है. ओके, नेक्स्ट. विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट, प्रिपेयर अ फैक्ट फाइल ऑफ एयर मार्शल अर्जन सिंह. डेट ऑफ बर्थ कब थी आप बताइए? 1939 पे थी. प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर थी उनकी? बॉर्न कहाँ पर हुए थे? एजुकेशन कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में, टुडे पाकिस्तान. बट कौन सा कॉलेज था उनका? देन फर्स्ट असाइनमेंट कौन सी थी? इम्पोर्टेंट पोस्ट हेल्ड इन एयरफोर्स एंड आफ्टर रिटायरमेंट. ठीक है, एम्बेसडर बने थे वो, राइट? फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने थे. अवार्ड्स कौन से उनको? पद्म विभूषण अवार्ड है, राइट? फिर DFC, बहुत सारे अवार्ड है ना उनको. मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एयरफोर्स, हाँ, इनकी टेक्नोलॉजीज, इनकी टेक्निक्स यूज़ की थी. रिटायरमेंट 1969 में हुआ था. ठीक है, क्लियर? ही वॉज ऑल्सो गॉट द पोस्ट ऑफ एयर मार्शल इन 2002. क्लियर? जब आप पैदा भी नहीं होते उससे बहुत पहले इन्होंने अपनी ये रैंक ले ली थी. ओके, सो hope so you have understood the chapter. We have completed the अच्छा आगे भी है, we'll see. Okay, qualities of Arjun Singh. He was brave, right? He was hardworking, he was intelligent, we can say brainy,
फिर इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, लीडरशिप क्वालिटी थी, ठीक है। तो और भी लिख सकते हैं, बस इन्होंने इतने पूछे। फिर क्या पूछा है, से व्हाट एक्शंस प्रीसीड द फॉलोइंग प्रमोशंस ऑफ अर्जन सिंह इन हिज करियर इन द इंडियन एयरफोर्स, सिलेक्टेड फॉर एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्सेज एट राफ। अब बताइए, इसमें आपको ही बताना है सब, ठीक है। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रेजेस विद द अप्रोप्रिएट वन टू रिटेन द प्रॉपर मीनिंग, क्लियर। ये तो आप कर ही लोगे, ओके। बिल्ड द वर्ड्स वॉल विद द वर्ड्स रिलेटेड टू द मिलिट्री, मिलिट्री से और क्या क्या हो सकता है, गन, यूनिफॉर्म और राइफल, पायलट्स, सोल्जर्स, और क्या होता है, हाँ, यू कैन रिलेट एनीथिंग, ओके, रिलेटेड टू मिलिट्री। दिस इज हाउ यू हैव टू, देयर आर मेनी मोर टू डू। State the different meaning of the following pairs of homophones and make sentence of your own with each of them, ठीक है। अब लीड का, लेड का ये आप कर लेना, ये इजी है, ठीक है। फिर the following homographs, homophones and homographs will be doing in next lecture, in which you will understood completely and develop the story suitable to conclusion given below, suggest a suitable title, ठीक है। यहाँ पर and so with tears of joy and pride the 10 years old Yogita Moore received the National Bravery Award for the from the Prime Minister। तो एंडिंग इसमें करनी है आपको, कुछ स्टार्ट करनी है कि संयोगिता ऐसे जा रही थी, फिर उसने किसको बचा लिया, पानी से डूबते डूबते किसी की जान बचा दी इसने। यू कैन राइट दिस मैनी पॉइंट्स एंड एट द एंड यू कैन एंड अप विद दिस लाइन्स, ओके। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, दिस इज okay, this is how, why you wish to join armed force. So there are many students who have the dream to join the armed forces, even I do have, okay. So there are presses there, why first that the reason should be genuine why you want to join. There it should not be for a professional reason that the armed forces jobs are good. It is actually good, but apart from that you should have some specific reason to join the armed forces, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है, clear। So this is how we have completed with this chapter। इस चैप्टर में अर्जन सिंह के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स, फिर उन्होंने उनकी क्वालिटीज़, ठीक है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी क्या क्या है, उन्होंने ये सब बताया है। सो यू कैन लर्न मेनी मोर थिंग्स फ्रॉम अर्जन सिंह। ओनली बीइंग अ 19-year बॉय ही वाज सिलेक्टेड ओवर देयर, ठीक है। यू आर नॉट, you are close to 19, even you can get good achievements in your life that you can make proud to your parents, teachers and other friends, right? So start doing the things which will actually help in your life, or you in your life, it will help it. And there are many more things which the students can do. There are not only studies, there are many more other curriculum activities, like sports are there, there are other activities related to architect, anything, okay. So keep on going, keep on doing the new things, and you'll achieve something in your life once. And be thorough with the lectures. We have completed, this is the third lecture, we have completed with all 3 lectures, and in other session we'll be completing the other chapter. So till the time, stay tuned. Thank you.